Hey everybody, बहुत बहुत स्वागत. My name is Ekam Singh Panu and this is the English Family YouTube channel. As you know, we just discussed with different students on the IELTS preparation and on the किस हिसाब नाल सारी journey रही है. Recent result that has come is of Pratham Jindal. Best part about him is that he has scored 7.5 in reading, 7.5 in listening, 7 in writing and 6 in speaking. And ਹਰ ਬੱਚਾ ਬੈਂਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਦੈਟ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੈਂਡਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ. This is one part. Second part is that he is from Rajasthan. He is from Jaipur. And इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ will be just looking at his own experience ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Just because ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਆ. ਐਂਡ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹਨੇ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ. तो बहुत बहुत स्वागत प्रथम. Congratulations for your band score. बहुत बहुत चंगा लगा. Thank you so much, sir. Of your results, with your result पता लगा, it was really good. So पहला था just tell about yourself कि तुसी कितना पढ़े हो, about your degree and all, and tell something of your schooling as well. कित्थों तुसी होने, from where you are. Well, thank you for giving me this opportunity to describe about my experience, that how I cracked IELTS actually. So actually, if I start, I done my schooling in an English medium school, Wow. and I came to Punjab for my graduation at Lovely Professional University, and there I was living at a PG. So I got to know about Rainbow e-services. So there I joined for IELTS preparation. So simply while I started, what I got to know on first day, Ekam sir explained me like it's not a tough exam if you take it easily, or you don't take any a lot of burden about it. So from that day I got like I have to do it like this. So I started. प्रथम हिंदी में आजा, हिंदी में you can just talk in Hindi if you want, कोई बात नहीं है. This is a very casual thing. This is not a kind of promotion. Just say हिंदी में बोल, कोई बात नहीं. खत्म हो गया पेपर भाई, बैंड आ गए, 7 बैंड आ गए, बात खत्म कर. चल अब शुरू कर. Okay. हाँ. तो जैसे सर ने मुझे बताया कि ये बहुत ही इजी नॉर्मल पेपर है, अगर तुम इसको ढंग से तो इसको करे तो जैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो जैसे हर बच्चों को पता होता है अपना अपना कि जैसे कि मेरा कौन सा वीक सेक्शन है, मेरा कौन सा टफ सेक्शन है, मतलब जिस सेक्शन में मैं मतलब कि कमजोर हूँ और जिस सेक्शन में मैं अच्छा हूँ. तो जैसे मेरा खुद का सेक्शन था कि राइटिंग था, मेरा राइटिंग में प्रॉब्लम थी कि मेरी हैंड राइटिंग एक तो खराब अच्छा थी. मेरे को ऐसे करते हैं, लेट्स स्टार्ट लाइक दिस. पहले कभी आइल्स के बारे में सुना था? व्हेन यू वर इन राजस्थान कभी पता था कि आइल्स होती भी क्या है, कि पंजाब आके पता नहीं लगा कि यार ऐसी भी कोई चीज है? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं पता था एक्चुअली. ये सब मैं सारा बोलूंगा तो कोविड की वजह से ही सब कुछ हुआ. मतलब ग्रेजुएशन मेरी बायोटेक्नोलॉजी में है, तो कभी मेरा कोई कभी ऐसा पहले प्लान नहीं था अभी मेरा. लेट मी जस्ट आल्सो गेट लिटिल बैक. कभी ये सोचा था कि दैट यू विल बी थिंकिंग अबाउट कनाडा आल्सो? कभी ये सोचा था नेवर पहले? नेवर आल्सो दूर की नेवर बात. नेवर ਸੋ नेवर ਸੋ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ मुझे ਦਾ भी ये लगता है. ਇਨ ਦਾ ਸੋਇਲ. अच्छा चल, तो नाउ लेट मी नो व्हेन यू जस्ट केम टू पंजाब फॉर योर बैचलर्स. ठीक है, आप आए और यू जस्ट वर लिविंग इन द कोविड टाइम्स. दैट दोस वर द वेरी क्रूशियल इयर्स ऑफ आवर लाइफ. ठीक है, हम सब ने वो बड़ा मुश्किल से संभाला. बट एंड ऑफ द मुझे ये बताओ कि क्या व्हाट वाज दैट एक्सटिंग व्हेन यू थॉट कि यार अभी कनाडा मेरे को जाना चाहिए, अभी मेरे को आइल्स देना पड़ेगा, ऐसा क्या हो गया व्हेन यू थॉट अबाउट इट? लाइक एक्चुअली मेरा जो स्कोप है जो बायोटेक्नोलॉजी है, मतलब कि इस फील्ड के अंदर बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में, तो ऐसा है कि जैसे अभी इधर नॉर्मली ऑप्शन होता है कि आप एमएससी कीजिए, आप पीएचडी कीजिए और फिर आप साइंटिस्ट बन जाइए, तो ये एक ऑप्शन होता है. लेकिन ट्रू. अगर हम बात करें फॉरेन की, जैसे काफी कोई भी कंट्री हम लेते हैं, कनाडा लेते हैं, तो हम जैसे बात करें
तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ अपॉर्चुनिटीज है और वहाँ वैल्यू है आपके काम की। और दूसरी बात कि वहाँ ऐसा नहीं है मतलब कि आपको जैसे पूरा मौका मतलब आपको दिया जाता है, हर चीज के अंदर आपकी वैल्यू की जाती है। और यू कैन मतलब एक्सप्लोर योरसेल्फ। या और एक फील्ड का केवल एक ही डेस्टिनेशन नहीं है। मतलब अब जैसे बायोटेक है तो इंडिया का बायोटेक में केवल जैसे डेस्टिनेशन है कि आप पीएचडी कीजिए, साइंटिस्ट बनिए, आप टीचर बन जाइए, लेकिन वहां आप जाएंगे तो वहां ऐसे 20 से 30 से ऐसे मतलब काफी सारी डेस्टिनीज अपने लिए खुल जाती है, क्योंकि वो एक कंट्री है जो कि डेवलप्ड है, जहाँ पे मतलब कि ऑलरेडी मतलब लोगों ने इस फील्ड को सीरियसली लिया है, बिलीव किया है। तो मतलब कि और भी इसी फील्ड को छोड़ो और कोई भी चीज हो, तो वहां उन लोगों ने रियलाइज किया है उन चीजों की वैल्यू, तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज है, इतना मैं मानता हूँ। तो यही चीज मतलब कि जो मेरे को लगी मेनली कि हाँ, अगर मेरे को एक्सप्लोर करना है, मेरे को इस फील्ड में कुछ बेटर करना है, तो आई नीड अ बेटर प्लेस फॉर अ बेटर प्लेटफॉर्म। सो व्हाट दैट्स आई वेरी गुड। रियलाइज्ड एट लास्ट दैट कैनेडा इज द बेस्ट प्लेस। सो दिस इज नहीं, सही बात है, व्हाट हाउ आई ये गॉट फॉर बात, कनाडा। ये गल तू बिल्कुल सही कही है कि एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी शुड गो फॉर द अपॉर्चुनिटीज। एंड राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, इंडिया बहुत वधिया, आई लव इंडिया, बट एंड ऑफ द डे पर कितने किते व्हेन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ यू फील कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ that is या that place ਜਿੱਥੇ बिल्कुल ਉਹ बिल्कुल ਬਾਇਓਟੈਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, बिल्कुल बिल्कुल when ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਰਿਸਰਚਡ ਗੂਗਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਨੈਟ ਤੇ या ਕਿ ਯਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਣਾ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਇਲਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। सो आइल्स इज बेसिकली थॉट अबाउट कि यार इंग्लिश का पेपर है, इसको ऐसे ऐसे देना है, 4 इसके मॉड्यूल होते हैं और ये तो कोई भी कर लेगा। बिल्कुल। Was that your mindset about IELTS? कैसा लगा था जब पहली बार IELTS के बारे में पता चला? जब पहली बार मैंने ये वर्ड सुना, कि पहले मैंने सोचा कि चलो मैं दूसरी कंट्रीज के लिए ट्राई करता हूँ। फिर मैंने जब अच्छा। गूगल गया तो मुझे पता लगा कि रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप एजुकेशन या जॉब के लिए बाहर आप जाते हैं तो रिक्वायरमेंट होती है कि आइल्स नाम की एग्जामिनेशन है जो आप देते हो। आइल्स के साथ साथ कुछ और भी एग्जामिनेशन है, टोफिल, जीआरई, मगर आइल्स मेरे को हाँ हाँ, एग्जामिन लगा जो कि सभी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती है एक्चुअली। ठीक है। even embassy also तो accepts it. True, very good. या तो हम्म इसी पॉइंट की वजह से मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि हाँ मेरे को आइल्स सबसे पहले की आइल्स करनी है। तो जब आइल्स हम्म करनी है तो फिर मैंने ढूंढा कि मैं कैसे करूं, मतलब कि अब जैसे मेरे को कुछ पता नहीं कि क्या स्ट्रेटेजीज होती है, कैसे लिखते हैं, कैसे कैसे मतलब कि मेरे को पता नहीं। अपने आप को तो सबसे प्रेजेंट पहले मैं, करते हैं। हाँ हम्म बिल्कुल, कि कैसे वहां पे स्पीकिंग होती है, कैसा इंटरव्यू कितनी देर तक चलता है, मुझे कुछ नहीं पता था, पहली बार मैंने सुना। क्योंकि एक्चुअली मैं हम्म जयपुर से आता हूँ और राजस्थान में एक्चुअली ऐसा नहीं है, मतलब कि जितना पंजाब में मैंने देखा आगे कि मतलब कि लाइक एवरीवन इज जस्ट फॉर आइल्स, लाइक व्हाट एवरीवन थिंक्स, लाइक वी हैव टू क्रैक आइल्स अदरवाइज देयर इज नथिंग। सो दिस इज व्हाट आई सो इन पंजाब मेनली, लाइक ऐसा एब्सोल्युटली मेरे राजस्थान में एब्सोल्युटली। नहीं है। हाँ, तो नहीं है, तो ये चीज राजस्थान मेरे में लिए नहीं है। सच में बहुत ही यूनिक थी और नई थी, एकदम नोवल चीज थी हाँ मेरे लिए। तो इसीलिए फिर बाद में मैंने कुछ मेरे पंजाबी फ्रेंड्स हैं जहां मैं रह रहा हाँ, था, उनसे मैंने ये इस बारे में पूछा। तो उन्होंने हाँ, बोला कि लाइक यू विल इजीली क्रैक, इट्स you इट्स will easily एग्जाम, crack। यू विल इजीली क्रैक। दे फर्स्ट हाँ। थिंग दे सेड मी लाइक यू विल इजीली क्रैक, यू आर फ्रॉम राजस्थान एंड यू विल इजीली क्रैक। वाह। बट व्हाट आई थॉट लाइक, मेरे को तो पता भी नहीं था कि कैसा उसका पैटर्न है, कैसा उसका क्या है। हम्म लेकिन फिर मैंने हम्म सबसे पहले मैं यूट्यूब पे जाके मैंने ये देखा कि भाई पेपर होता क्या है। तो अब हम्म मुझे ये तो पता लग गया कि पेपर होता क्या है। अब लेकिन मुझे हम्म। ये नहीं पता करना कि भाई कैसे, यही कोई मुझे बताओ। करना कैसे है, अब मुझे ये नहीं पता। अब नॉर्मली हम्म जैसे इंग्लिश स्पीक करते हैं, ठीक है, हाँ बढ़िया है, बात है, बोलते हो, लेकिन वो हम्म। सेम बात नहीं है वहां बोलना और नॉर्मली इंग्लिश बोलना, क्योंकि देयर इज अ बहुत चीजों का सेट हमें ऑफ ध्यान रखना होता पैटर्न है। जैसे आपको करना बिल्कुल, है, हाँ बिल्कुल वो सही हमें है। फॉलो करना अच्छा, होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरे को एक बता, बात प्रथम के एंड ऑफ द डे व्हेन यू स्टार्टेड योर थिंग है, मेरे को याद है द डेज ऑफ योर ओरिएंटेशन एंड जैसे यू रिस्पोंडेड टू वर्ड्स के, जब मैंने बताया कि ऐसी टेक्निक्स होती है, ऐसी होती है, यू टुक इट वेरी इंटरेस्टिंगली एंड बिल्कुल मजा आ रहा था। अब मेरे को ये बता कि कहीं पे भी ड्यूरिंग दिस जर्नी कहीं पे ऐसा लगा दैट यू आर रीडिंग समथिंग जो कि पहले स्कूल में पढ़ा हो, मतलब जो पुरानी इंग्लिश सीखी थी, इज इट समथिंग सेम लाइक दैट कि थोड़ा सा डिफरेंस है इस चीज में? और देखो, इसको इजी करता हूं, डज दिस एग्जाम रिक्वायर अ माइंडसेट? मेरे हिसाब से एग्जाम सच में मतलब एक माइंडसेट इस एग्जाम में चाहिए।
जो अपन को पहले ही सोचना होता है कि अपन को इस तरीके से एक स्ट्रेटेजी बनानी होती है कि हमें इस तरीके से इस मॉड्यूल को अटेम्प्ट करना है। मतलब जैसे लिसनिंग और क्या बोलते हैं, ये होती है रीडिंग होता है। रीडिंग तो हमारी स्कूल लेवल में भी हमें होती है, लेकिन वो ईजी होता है। मतलब रीडिंग तो कंप्रेंशन हम बचपन से ही आता, हमारे पेपर में आता है, इंग्लिश के पेपर में, तो वो बिल्कुल हमें पता बिल्कुल होता है कि बिल्कुल। हाँ ऐसा होता है। हाँ, क्वेश्चन टाइप्स भले ही चेंज होते हैं, थोड़े हार्ड लेवल पे जाते हैं। बाकी ये जो लिसनिंग हुई, और बाकी राइटिंग भी हम मतलब करते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं लिखते हैं हम। ऐसे हम लिखते हैं, नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसमें पर जो होता ऐसे है वो नहीं पैटर्न लिखते। एकदम अलग होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल तो बिल्कुल। वही चीज जो मतलब अलग है। बाकी जो चीज है, ये जो सेम चीज थी वो कंप्रेंशन थी, जो मुझे थोड़ी पहले से पता थी। बाकी जो चीजें अच्छा, थी वो नहीं थी। चारों मॉड्यूल्स में से पहले चलो ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट इट, पर चारों मॉड्यूल्स में से सबसे इजी मॉड्यूल कौन सा लगा था जब आपने करना शुरू किया था? अभी कौन सा मॉड्यूल लगा? ओके ओके। अरे पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मेरे को लिसनिंग मॉड्यूल और स्पीकिंग मॉड्यूल एक्चुअली मेरे को जो लगते थे कि ये मेरे ऐसे हम्म, मॉड्यूल है कि मतलब इनमें मतलब कि आई ये मैं कर डेफिनेटली गेट। लूंगा। हाँ, हाँ ये मैं हाँ। कर लूंगा। या ये वो मुझे लगे कि एकदम इजी है। मतलब कि नॉर्मली जो मेरे को शुरू हाँ में 4-5 दिन में गया, मैंने स्पीकिंग भी दी, मैंने मतलब कि मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट किए थोड़े। तो हाँ मेरे को हाँ लगा हाँ कि हाँ हाँ। ये मेरे मॉड्यूल ऐसे है कि जिनमें मेरी पकड़ हम्म है, मतलब जिनको मैं आराम से इजीली करेक्ट कर लूंगा। लेकिन मेरे को जो हम्म मेन चीज जो लगी उस टाइम पे कमी, क्योंकि मेरी एक तो हैंड राइटिंग खराब थी, और हम्म दूसरी बात कि मैं स्लो लिखता था, मतलब कि मेरी स्पीड बहुत कम थी। और ये एक बहुत ही हम्म मेजर फैक्टर है जो मैं मानता हूँ एक्चुअली, क्योंकि जो हम्म हमारे रेनबो इंस्टीट्यूट में मनदीप मैम राइटिंग पोर्शन करवाते हैं। तो ये हम्म एक मेजर थिंग थी जो मैंने मैम से डिस्कस की। तो मैम ने बोला कि ये एक मेजर पार्ट है कि तो तुम्हें करना चाहिए, अपना सही करना चाहिए, क्योंकि राइटिंग हम्म सच में मैटर करती है। और तुम स्पीड अगर कर, स्पीड भी मैटर करती है, क्योंकि 2 टास्क उसमें होते हैं, टास्क 1 और टास्क 2। हम्म, तो स्पीड भी मैटर बिल्कुल। करती है और राइटिंग भी मैटर करती है। ये तो मेरे को लग गई थी उस दिन चीज की, ये तो मेरे को करनी ही पड़ेगी अब तो ठीक से। तो अब उस हम्म। दिन से फिर मैंने वही कि चलो बाकी सेक्शन में कर लूंगा। रीडिंग हम्म, ऐसा था कि रीडिंग के अंदर थोड़ी हम्म, बहुत वोकैबुलरी भी अपनी होनी चाहिए, कि अपन को थोड़ा मीनिंग्स पता होना चाहिए वर्ड्स के, पता वो भी होना कहीं चाहिए। कहीं मैटर करते हैं। और एक स्ट्रेटजी हम्म कि आप किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, तो वो मेरे को हम्म। थोड़ी थोड़ी थी। मतलब कि हाँ मैं कर रहा था, मतलब कि मैं उसमें मेरा एलिजिबल हो रहा था मैं उसके अंदर। हो तो रहा था, मेरे को बिल्कुल मेन बिल्कुल। टेंशन राइटिंग की थी। हाँ, तो मेन टेंशन राइटिंग हम्म। की थी, तो मेरे को लग गया कि हाँ अब इसमें तो मेरे को करना ही है, मतलब ठीक से। तो मैंने हम्म टास्क ले जाना शुरू किया घर पे। सबसे पहले मैंने टास्क ले जाना शुरू किया कि मेरे को पता था कि ये मेरे हम्म, वीक है टास्क, मेरे टाइम भी मैनेज नहीं हो रहा है, राइटिंग भी मेरी खराब है। और एक मैं अच्छा। चीज मेरे को मैं बताना चाहूंगा कि मैंने मेरे पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे 6 पेंसिल चेंज की, डिफरेंट डिफरेंट 6 पेंसिल्स। मतलब मतलब कि मैं लिख रहा था, मैं बहुत ही लाइट लिखता था, और मेरी हैंड हम्म राइटिंग खराब आती थी। और मेरा ये हम्म वहम था कि मेरी ये पेंसिल की वजह से ऐसा हो रहा है। और मैं सच में ये बात बोलूंगा कि आपको डार्क पेंसिल ही यूज करनी चाहिए। मैं ये बात बोलूंगा सीरियसली, आफ्टर 6 पेंसिल हाँ आई गोट राइट पेंसिल। तो वही हाँ। पेंसिल, मतलब सीरियसली कि मुझे लगा कि डार्क डार्क लिखना सच में मतलब हेल्प करता है। मतलब एग्जाम में भी मैंने फिर वही पेंसिल यूज की। वो उन्होंने अलाउ भी मुझे नहीं किया एग्जाम में कि वो पेंसिल अब नहीं ले जा सकते, लेकिन मैंने उनसे वहां हाँ पे भी फाइट की इस बारे में कि सर इसमें कुछ इलीगल नहीं है, आप मुझे ये पेंसिल लेके जाने दो बस, सर मेरे को इसी पेंसिल से लिखना है, अदरवाइज मेरा एग्जाम ठीक नहीं होगा बस। तो ये मैं हाँ, बोलता हूँ कि तभी शायद मैंने 7 बैंड आए। लेकिन कैसे ना कैसे करके मैंने वो टास्क जब मैं लेके जाता था तो मैं इम्प्रूव किए मैंने। और सबसे बड़ी मेन हम्म चीज आती है वो इवेल्युएशन आती है। अगर आपको कोई कोई सही बंदा आपका अगर इवेल्युएट कर रहा है सही तरीके से, तो वो आप हम्म डेफिनेटली उस चीज को इम्प्रूव करोगे ही करोगे। और मनदीप हम्म मम वाज द बेस्ट सीरियसली। मतलब कि ऐसा हम्म नहीं है कि मैम जैसे कि ऐसे नॉर्मली जितनी मेरी गलती हम्म होती थी, जितनी गलती हम्म उससे मतलब कि इवन एक्स्ट्रा गलती मैम निकालती थी, ताकि मैं दोबारा वो गलती ना करूं। और मैंने हम्म, सीरियसली वो चीज को मैं पढ़ता भी था कि हाँ मैंने जो गलती की मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, वरना ये दैट्स मेरी गुड। मतलब कि शर्म की बात होगी कि मैं उसको कर रहा हूँ तो अगर रिपीट। तो इस वजह से मेरा राइटिंग पोर्शन भी इंप्रूव हुआ। तो ऐसे मेरे को ਬੱਚਾ लगा कि हाँ ਇਹ सीरियसली ਚੀਜ਼ अनएक्सपेक्टेड। ਪ੍ਰਥਮ ਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡਾ ਆ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਹੈ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੱਸਣਾ, ਪਰ ਟੀਚਰ ਖੁਦ बिल्कुल ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਟ नहीं दे ਅਗਰ सकता। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, बिल्कुल ਪ੍ਰਥਮ, बिल्कुल ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਪ੍ਰਥਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਰੈਸਿਪੋਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੁੱਡ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ हम्म। ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਟ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਹੀ बैंड ਆਉਂਦੇ ਆ, है ना? आई एंड थिंक सर दिस इज वेरी। वन थिंग आई वुड लाइक टू से, लाइक फ्राइडे और सैटरडे में यहाँ पे मतलब ग्रामर क्लासेस होती है, जहाँ पे सर मतलब थोड़ा मोटिवेट भी बच्चों को करते हैं साथ साथ में
कि आपको भाई क्या इंपॉर्टेंस आइल्स की और कैसे मतलब आप काम करो। तो एक बात सर ने ऐसे ऐसे बोली थी, मेरे को एक्चुअली पंजाबी इतनी समझ में नहीं आती और ना मेरे को इतनी बोलनी आती, मगर स्टिल ये बात सर ने बोली कि भाई मेरी पिठ ना ठुका दी, ऐसा कुछ करके सर ने मेरे को कुछ बोला था कि हाँ भाई मेरा नाम ना खराब कर दी। वो पता है that was like that, वो पता है ਕੀ ਸੀਗਾ मैं तो ਦੱਸਦਾ, I remember it was, हाँ it was Saturday and Yes, sir. ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ, ਪਿੱਠ ਨਾ ਲਵਾ ਦੀ, हाँ पिठ ना लवा दी, because that is like very that, like that. important. Yeah, हाँ पिठ ना लवा दी, मतलब in the sense that I have faith on you, I have faith yeah, on the hard work that you've done, but yeah. end of the day, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਬਲੀਵ ਮੀ ਇਹ ਫੀਲ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਐਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਟੀਚਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, सो इस करके मैं कह रहा बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसन टू योर टीचर्स, चाहे जिस मर्जी टीचर तो पढ़ रहे हो, द एजुकेटर हु इज प्रोवाइडिंग यू द एजुकेशन, वो अपना अपना हार्ड अर्नड एक्सपीरियंस और नाल शेयर करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। वो एक्सपेक्ट करते हैं सर, मतलब कि मैं क्या फील करता हूँ, मैंने और भी एंट्रेंस एग्जाम दी है, तो मतलब ये मेरे को गट फीलिंग ऐसी है कि मतलब कि टीचर्स सच में टीचर एक्सपेक्ट करता है सामने से कि अगर वो कोई नॉलेज अपन को डिलीवर कर रहा है तो वो चाहता है कि सामने वाला बच्चा उसको एक्सप्रेस करे और उसमें मतलब कि बच्चा सक्सीड हो, मतलब उस चीज के अंदर वो टीचर चाहता है। तो ये वाली बात मेरे को इंपॉर्टेंस पता थी इस चीज की। तो अगर आप उस दिन आपने ये बात बोली, मैंने मेरे फ्रेंड से डिस्कस की बाद में लास्ट में कि सर ने क्या बोला, तो सर ने बोला कि भाई मेरा नाम मत खराब करना, मेरे को सफल बनाना कि मैंने तुम्हें पढ़ाया। तो ये वाली बात मेरे को लगी कि यार सीरियसली देखो, अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ से तो देखो सर, ऐसा तो मैं नहीं करूंगा कि सर को बुरा लगे लास्ट में कि यार मैंने इसको पढ़ाया लेकिन फिर भी इसको नहीं हुआ। तो ये बात मेरे दिमाग में थी और ये बात एक सच में एक मेरे लिए मोटिवेशन सच में थी। मैंने फील मतलब कि अगर सर ने ये बात बोली है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को अच्छा करना ही करना है। ये मैंने सोच लिया था कि हाँ करना ही काश करना हर है। तो बच्चा ये एक चीज समझे, मेरे लिए काश सच हर में बच्चा समझे। मोटिवेशन थी। थैंक यू सो मच प्रथम, तू लाज रखी उस चीज ਦੀ, जस्ट बिकॉज के लिटरली कह रहे हैं ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਬੈਂਡ ਆਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਬਿਕॉज ਵੀਜ਼ਾ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਦੇਣਾ That ਹੈ, I know, sir. we present that beautifully, that is my job, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਬਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫੈਕਟ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲੰਟਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨਾ ਫਸਲ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਲਾਈਕ खेत में फसल काइंड ऑफ थिंग ना। सो अगर फसल ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਬੋਨੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਨੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਨੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਜਾਂ ਗੜੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਟਰਲੀ ਕਾਲਜਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਲੁੰਦਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ that success, that is very important, not only for the student but for the teacher also. Thank you so much, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸੋ, what was your ultimate strategy, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ, how you planned it, were you very emotional in your preparation ਜਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀਤਾ, how was it? देखो सर, अगर इमोशनली बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब कि मैं ऐसे इमोशनली अटैच था इस पॉइंट से। बाकी एक इमोशन जो था कि हाँ मेरे को मेरे टीचर का वो रखना है, टीचर ने मुझे बोला है, तो ये एक मेरा इमोशन था कि हाँ मेरे को इनकी बात रखनी है। बाकी इसके अलावा ऐसा कोई इमोशन नहीं था कि मतलब कि पर्टिकुलरली कि नहीं, इस एग्जाम से ही जैसे मेरा सब कुछ है या फिर इस एग्जाम। प्रथम I just want to say, जैसे फॉर एग्जांपल कई बच्चे करते क्या है, पेपर से पहले 5 रीडिंग्स 6 रीडिंग्स करते हैं, 10 रीडिंग्स करते हैं, कुछ ऐसा किया था कि नहीं किया था? वर यू वेरी काम एंड पीसफुल, कैसा था? नहीं, मैं अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, मैंने ऐसा मतलब कि ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कि मैं ऐसे 5 रीडिंग कर रहा हूँ या 6 रीडिंग कर रहा हूँ उससे पहले, या फिर मतलब कि मैं कोई भी चीज करते जा रहा हूँ, मतलब कोई भी चीज ऐसे कि हाँ मतलब कि बस ऐसा ऐसा मेरे को लगता है कि बल्कि ये करने से ना, बल्कि ज्यादा मतलब कि अपना माइंड होता है ना वो डाइवर्ट होता है, मतलब कि या फिर अपन मतलब कि ज्यादा प्रेशर अपने माइंड में क्रिएट होता है और उसकी वजह से फिर एट लास्ट अपन को ये लगता है कि इतनी प्रिपरेशन कर ली, इतना घड़ा भर लिया कि अब अगर कुछ नहीं हुआ ना तो अपन गए। तो ये वाली अगर फीलिंग अगर अपने आ जाती ना एक बार,
तो अगर ये अपन गलत है। एक भी गलती अगर एग्जाम में करते हैं, एक भी गलती अगर मान लो अपन एग्जाम देने जा रहे हैं, अपन खूब प्रिपरेशन अपन ने की है और अपन एग्जाम देने जा रहे हैं, और वहां पे अगर एक भी क्वेश्चन अपन या फिर एक भी पॉइंट जहां लगा कि अपन ने ये गलत हो सकता है, तो वहां हमारा पूरा का पूरा वो चीज सामने आती है, पहला थॉट तो दिमाग में आता है कि यार हमने इतनी प्रिपरेशन दी, अब तो मैं गया। और ये सबसे बड़ी गलती है जो मेरे को लगता है सीरियसली, क्योंकि अच्छा मैंने एक ऐसा किया चीज कि मैंने प्लीज, सब कुछ हाँ सबको इक्वल टाइम दिया बेसिकली। हाँ एब्सोल्युटली, ये मैं चीज ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੱਖ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਯੂ نو ਦੇ ਜਸਟ ਡੂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰ 10 ਰੀਡਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਯੂ نو 5 ਰੀਡਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੁਜੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਹਫਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ 2 ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਾਗਲਪੁਣਾ ਨਾ ਖਿਲਾਰੋ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ 5-5 ਰੀਡਿੰਗਸ ਕਰ ਲਈਆਂ, 6-6 ਰੀਡਿੰਗਸ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਧੇਗਾ, है ना। सो मेरे ख्याल में हाँ इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इस चीज में होना चाहिए। बिल्कुल सर, ये यही तो मैं बोलता हूँ। जैसे जैसे मैंने कहा कि मैं राजस्थान से हूँ, मुझे इतना इसका पता नहीं चीजों के बारे में, लेकिन जब जब मैंने एक दिन कोशिश की कि चलो मैं भी करता हूँ कि खूब सारी रीडिंग करता हूँ, लेकिन मैंने पहले पूछा, मतलब कि मैं गया सर के पास कि सर मुझे बताओ कि ऐसा मैं करूँ नहीं करूँ। तो सर ने मुझे अगर सजेस्ट किया एक बार कि बेटा ऐसा मत कर, क्योंकि इन्होंने सर को पता है बच्चों के बारे में, सर ने मुझे बोला कि मत कर। तो इतना मेरे को लग गया कि अगर कुछ बोला है तो सर ने सोच के बोला होगा कि भाई मत कर। तो मैंने नॉर्मली कि हाँ एक थैंक रीडिंग यू, में लेके गया, वो मैंने की बस। थैंक बस यू तो दैट ये यू वाली बात मैंने लिसनड। सुनी, मतलब किया कि हाँ, मतलब कि बस इन्होंने कह दिया कि मतलब सही कह रहे होंगे तभी, मतलब कि इनको पता है कि भाई पंजाब में यार इतना आइल्स मतलब चलता है यार, इतने बच्चे इनके पास है, तो पक्का ये सही बोल रहे होंगे सर। तब मैं फॉलो करता हूँ ये चीज, और वही मैंने चीज फॉलो की। और बाकी आपके सामने है कि देख लो, मतलब अच्छा मैं ना, कि 7.5। दिस एक चीज मैं फील ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਆ ਗਏ, ਉਦਾਂ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਯੂ نو ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, मेरे जयपुर पेरेंट्स पता को सीगा। भी इवन नहीं पता था कि मैं मतलब पेपर दे रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स को भी इवन नहीं हाँ पता था इस बारे में। मतलब किसी को हाँ, मैंने ऐसा कुछ हाईलाइट नहीं किया कि यार मैं किसी एग्जाम के बारे में पढ़ रहा हूँ या फिर ਪੇਪਰ ਦੇ तैयारी कर रहा हूँ या ਪੈਸੇ फिर पेपर दे रहा हूँ। ਇਹਨੇ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨੇ ਯੂ نو ਫਰੋਮ ਸਮਾਲ ਵਰਕਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਐਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਰੱਖੋ। ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਲ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੁਝ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂ نو ਮਿਸਿੰਗ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਪ੍ਰਥਮ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, है ना। आई थिंक सो। बिल्कुल सर, ये चीज हाँ सच में सर ये डिफरेंट मेरे को भी लगी, क्योंकि काफी सारे बच्चे थे इंस्टीट्यूट में जो मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे थे। तो मतलब मेरे को जितना कि भाई हाँ, मतलब कि वो कि उनको सबको पता है कि भाई उनके इधर आसपास के लोगों को कि हाँ वो आइल्स कर रहे हैं या फिर आइल्स मतलब उनको करनी ही है, उनको बैंड लाने हैं, मतलब ये एकदम माहौल एक रहता है। लेकिन मेरा ऐसा कोई माहौल नहीं था, इवन मेरे फ्रेंड्स तक को भी नहीं पता था। मतलब नॉर्मली बस जिस ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ इंस्टीट्यूट में ਕੀ मैं ਹੈ, जा ਜਦੋਂ रहा था ਜਦੋਂ बस उधर ਕਿਸੇ पता ਵੀ, था। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਗਰ ਮਾਹੌਲ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਕਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਾਕਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬੱਚਾ ਆਇਲਸ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਨਾ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਪ੍ਰਥਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ, ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸ दैट कोई कितों कोई वोकैबुलरी या कोई क्रैमिंग, कोई रट्टा वगैरह कुछ लाया किसी चीज का, मतलब नहीं नहीं किसी नहीं, ऐसे क्रैमिंग दा। ये तो नहीं नहीं नहीं, ये वाली चीज तो मतलब कि कभी बचपन से ही मेरे में नहीं है कि मैं कोई चीज क्रैम करता नहीं हूँ। बाकी आपने भी फर्स्ट जो चीज बोली थी कि क्रैम तो करना ही मत, तो बस ठीक है, फिर मेरे को क्रैम क्यों ही करना था। तो क्रैम तो मतलब ये रहने दो, मतलब ना कोई मैं वोकैबुलरी क्वेश्चन देखना वैसे ना स्पेशली। जान के पूछया, मैं क्वेश्चन जान के पूछा, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਥਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੇ ਉਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਇਵਨ ਟੈਂਪਲੇਟ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜਿਆ, यू नो कोई क्रैमिंग नहीं की, कोई वोकैबुलरी याद नहीं की, एंड इस बच्चे ने खुद ब खुद अपने लेवल पे पेपर क्लियर किया, है ना।
बिल्कुल सर, सो बिल्कुल दैट्स सर, वेरी बिल्कुल गुड। कोई मैंने एक्स्ट्रा मतलब वोकैबुलरी कहीं से नहीं उठाई सर, बिल्कुल। अच्छा, कोई suggestion that क्योंकि you want to give to other your aspirants, for example, let's say अगर कोई तेरे को लगता है कि तू देना चाहता है, so you have just 2 minutes अगर कहना चाहते हो तो। हाँ, मतलब एक चीज है जो मैं मतलब कि मेरी लाइफ में जो चीज मैं मानता हूँ एक्चुअली, एक छोटा सा कोट है, मतलब कि ऐसे नीड टर्न्स इनटू सक्सेस। तो मैं इतना बोलूंगा कि जैसे अगर हाँ। कोई भी चीज है, अगर इंसान को अगर पानी भी पीना है तो अगर उसको हम्म। प्यास लगी वो तो ही उठ के पानी पिएगा, तो मैं इतना मानता हम्म। हूँ। लेकिन अगर इंसान को जैसे किसी की डिजायर है कि उसको बाहर जाना है, या फिर उसको बाहर हम्म। पढ़ना है, उसको बाहर जॉब करनी है, तो ये अगर उसकी हम्म। जरूरत है, सच में अगर उसकी वो जरूरत है, तो वो इंसान सच में हम्म। करेगा। और अगर जरूरत नहीं है तो वो सर नहीं कर सकता, ये मैं चीज मैं मानता हूँ। और सर मेरे को ये पता थी कि जरूरत है मेरे को इस चीज की, मेरे को अपॉर्चुनिटी बाहर है, और मेरा बाहर ही मेरे काम की वैल्यू है, तो वो चीज मुझे पता हम्म। थी। और इसी चीज की वजह से ही मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा क्रेडिट है कि मैंने क्रैक की, सबसे बड़ा क्रेडिट मैं मानता हूँ कि मेरे को जरूरत थी उस चीज की सर, तो इसीलिए मैंने उसको क्रैक किया, बस यही मैं बात मानना चाहूंगा, तो वो बच्चों चीज इस लो। चीज ਨੂੰ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਘੱਟ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰੋ, ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਆਈਡੀਪੀ ਨੇ ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਲਾਏ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਉਸ ਫਲਾਣੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫੇਲੀਅਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਬਲੈਂਕ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, 2 ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। I might sound very rude, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਅੱਖ ਵਾਂਗ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬੈਂਡ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਟਰਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਦੇ ਜਸਟ ਲੁੱਕ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਨੋਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਕਨਕਲੂਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪ੍ਰਥਮ, ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਬਗਾਨੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕਸੈਸ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂ ਲਵ ਇਟ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच बच्चे। सर एक चीज मैं और छोटी सी बोलूंगा कि मतलब कि सबसे बड़ी चीज कि अगर कहीं जाते हो, अगर आप कोई चीज सीखने अगर कहीं जा रहे हो, तो अगर वहां कोई मेंटर है जो गुरु है, आप उस पे मतलब कि विश्वास आप जब तक नहीं करोगे ना, जो चीज अगर वो सामने वाला नहीं बोल रहा है वो चीज आप फॉलो नहीं करोगे, तो अगर आप खुद की ही आप चला रहे हो, तो वो आप कभी भी मैं बोलूंगा वो चीज करेक्ट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि उस इंसान को जितना एक्सपीरियंस होता है उतना हमें नहीं होता है। और अगर वो कोई चीज बोल रहे तो सोच समझ के बोल रहे हैं, तो अगर आप उसे फॉलो करोगे तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप उसको करेक्ट करोगे। अदरवाइज मैं नहीं कह सकता कि करेक्ट हो पाएगी नहीं हो पाएगी बाकी, लेकिन अगर सुनते हो तो मैं पक्का बोलूंगा कि वो डेफिनेटली आप निकाल लोगे बैंड, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ये मैं बोलूंगा सर फाइनली। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਇਵਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਮਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੈਂ GNDU ਕੈਂਪਸ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਮੀ ਐਂਡ ਮਨਦੀਪ ਹੈਵ ਡਨ ਮਾਸਟਰਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੁਖੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਵ ਫੇਥ ਔਨ ਯੋਰ ਐਜੂਕੇਟਰਸ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬਠਿੰਡੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਟੀਚਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਮੰਨੋ, ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਐਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਐਂਡ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜਿੱਦਣ ਜੈਪੁਰ ਆਏ ਮਿੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਬਾਏ ਬੱਚੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ।